Assalamu alaikum everybody. Hope you all are doing good. आप ठीक से हैं, अच्छे से हैं. Then take your pen and paper so that we can begin with today's class. तो आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम we will continue with the second subtopic of this chapter. Unit cell analysis and packing is the very important part as I already mentioned it. तो आज हम क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं? Very important classification of unit cells. Unit cell की classification. So first thing you write down, unit cells जो है, these can be divided into two broad categories based on position of particles. एक यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे मौजूद है, किस जगह पे मौजूद है, उसके बेस पे we divide unit cells into two categories. Number one, primitive unit cells, जिनका दूसरा नाम क्या है, simple unit cells. इसी तरह से नंबर सेकंड कैटेगरी क्या है, these are the centered or non-primitive unit cells. Centered or non-primitive unit cells. So begin with the primitive unit cell. What are primitive unit cells? You can write down primitive unit cells. The unit cells having points या particles. क्योंकि हमने पिछली क्लास में बताया है, we represent these particles by points in unit cell. The unit cell having points or particles only at corners. The unit cell having points only at corners are called as primary unit cell. You can draw a primary unit cell here. This is the primary unit cell यहाँ पे जो हमने बनाई है. आप देख रहे हैं, this is a cubic unit cell having these points जो हमने red circles या red points बनाए हैं. तो यूनिट सेल जो हमारा क्यूबिक है, उसको हमने ब्लैक बॉन्ड्स दिखाए हैं. तो आप देख रहे हैं, पॉइंट्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8. चूंकि क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, then points are present only at corners. Such type of a unit cell is called as primitive unit cell. And number second class is non-primitive unit cells, जिनको हम centered unit cells भी कहते हैं. You write down non-primitive unit cells are also called as centered unit cells. तो centered unit cells क्या चीज़ है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे. Unit cells having points at corners and other places in addition to corners. बात समझ लीजिए, non-primitive unit cell या centered unit cell क्या चीज़ है. एक ऐसी unit cell जिसमें एक तो pointers corner पे होते हैं, in addition to the corners the pointers are present at other places as well. वो other place या तो face हो सकता है या फिर center हो सकता है या कहीं और पे. तो such unit cells are called as centered unit cells or non-primitive unit cells. ये जो non-primitive unit cells है या जिनको हम centered unit cells कहते हैं, these are further divided into 3 types. Number 1, face centered, body centered, and number 3rd, end centered. So non-primitive or centered unit cells can be divided into face centered, body centered, and end centered. Let's see what are these types actually. ये वाला section जो है, this is non-primitive or centered unit cell. Centered, UC means unit cells. तो यहाँ पे मैंने 2 centered unit cell बनाई है. एक तो FCC यानी face centered, जो अभी आपने देखा पहला टाइप कौन सा था, face centered unit cell. This is the face centered unit cell. So let's see what is the face centered unit cell. ये unit cell जो है, this is the face centered unit cell. इसमें आप देख रहे हैं, एक तो पॉइंट सारे 8 कॉर्नर्स पे हैं. ये एक कॉर्नर, दूसरा, this is 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th. तो एक तो 8 कॉर्नर्स पे पॉइंट्स हैं. उसके अलावा you will see the points are also present on 6 faces. एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये ऊपर वाला फेस है, इस फेस पे एक पॉइंट ऊपर से. ये वाला जो है साइड का एक फेस है, इसमें ये पॉइंट आप देख रहे हैं, हो गए 2 फेसेस. ठीक है. इसी तरह से ये यहाँ से जो ये वाला एक साइड है, यहाँ पे एक पॉइंट है. सो ऑल द 6 फेसेस कंटेन 6 पॉइंट्स. तो एक तो 8 कॉर्नर्स पे 8 पॉइंट्स होते हैं और फिर 6 फेस पे 6 पॉइंट्स होता है. तो सच यानी
when the points are present at 8 corners and additionally at 6 faces. Such a unit cell is called as face centered unit cell. तो दूसरा कौन सा है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देख लेते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या चीज़ है। ये यहाँ पे दूसरा BC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है एक तो 8 कार्नर्स होते ही है, क्योंकि कार्नर्स पे हमेशा पॉइंट आप देखते ही रहे, प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में भी और नॉन प्रिमिटिव में भी कार्नर पे हमेशा पॉइंट होगा, चाहे प्रिमिटिव यूनिट सेल हो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या फर्क है? कार्नर्स के अलावा कहीं और भी हो सकता है। तो BCC या जिसको हम कहेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पॉइंट कहाँ होता है? एक तो 8 कार्नर्स और एक बिल्कुल बीच में बॉडी में, यूनिट सेल की बॉडी में, यूनिट सेल की पेट में कह सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। सो 1 पॉइंट इन द सेंटर ऑफ यूनिट सेल and 8 points on the corners. This is called as body centered, as the name implies, body center. Then we have third category of the non-primitive unit cells. What is that? It is end-centered unit cell. Let's see what is end-centered unit cell. यहाँ पे मैंने एक end-centered unit cell बनाई है। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे, एक तो 8 कार्नर्स हो गए, 8C मीन्स 8 कार्नर्स प्लस 2 अपोजिट फेसेस। 2 अपोजिट फेसेस जो है उन पे पॉइंट होगा, 2 अपोजिट फेसेस। यहाँ पे आप देखिए एक तो 8 कार्नर्स है इसमें, एंड इन एडिशन टू द 8 कार्नर्स देयर आर 2 पॉइंट्स ऑन 2 अपोजिट फेसेस। आप देख सकते हैं मैंने कौन से 2 अपोजिट फेस चुन लिए हैं। एक ये ऊपर वाला फेस है, ये इस पे एक पॉइंट लगा है, इसका अपोजिट फेस कौन सा होगा? यानी जिस कमरे में बैठे इसका जो छत है इस पे मैंने एक लगाया है, तो उस छत का अपोजिट फेस कौन सा है? वो फ्लोर जिस पे आप बैठे हैं, दैट मीन्स दिस फेस। सो एंड सेंटर्ड में क्या आप याद रखेंगे? एक तो 8 कार्नर्स हमेशा है, नो कंप्रोमाइज ऑन दैट, या आप हमेशा याद रखेंगे कार्नर्स पे हमेशा होगा। लेकिन एंड सेंटर्ड में 2 पॉइंट्स एडिशनली होते हैं। वो 2 पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? 2 अपोजिट फेस पे होते हैं। फेस सेंटर्ड से इसका कंपेयर कीजिए, फेस सेंटर्ड में हर एक फेस पे होता है, लेकिन एंड सेंटर्ड में सिर्फ 2 फेस पे होते हैं, ओनली 2 फेसेस, एंड दोज 2 फेसेस आर अपोजिट टू ईच अदर। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स। होप यू अंडरस्टैंड इट। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट इसी का एक और सब टॉपिक लेते हैं। You write down types of primitive unit cells. Types of primitive unit cells based on dimensions of unit cell. ये dimensions जो है ये dimensions unit cell के हैं। Types of primitive unit cells based on dimensions of unit cell, और इसी का दूसरा नाम आप लिख सकते हैं simply 7 crystal systems। 7 crystal systems। देखिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये क्या चीज़ है। लोगों ने एस्टिमेट किया है, लोगों ने ऑब्जर्व किया है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या चीज़ है ये आपने अभी पढ़ा, दोज यूनिट सेल्स हैविंग पॉइंट्स ओनली एट कार्नर्स। अब ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, दीज आर ऑफ 7 टाइप्स बेस्ड ऑन वेरिएशंस ऑफ एज, लेंथ एंड एंगल वेरिएशन। यानी एक क्यूब जिस कमरे में आप बैठे हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, क्यूबिकल एग्जैक्ट जिसमें ABC लेंथ बराबर हो सकते हैं। जब हम यही लेंथ वेरिएशन करते हैं, यही एंगल वेरिएशन कर सकते हैं, तो टोटल हमने देखा हमारे पास 6 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर पॉसिबल। लेट मी अंडरस्टैंड इट। आप 3 डायमेंशन की जगह एक 2 डायमेंशनल यूनिट सेल लीजिए। A is equal to B and angle is equal to 90 डिग्री। 3 डायमेंशन की जगह पहले हम 2 डायमेंशन से समझाएंगे, दैट अप्लाइज टू द 3 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन की एक और यूनिट सेल मैं यहीं पे बना देता हूँ। A इज नॉट इक्वल टू B। अब देख लीजिए ये A है, ये B है, यहाँ पे A और B बराबर थे, यहाँ पे A इज नॉट इक्वल टू B। तो ये 2 डायमेंशन यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल अभी जो हमें था, इसी को हम रेक्टेंगुलर शेप में बना सकते हैं। आप एक और यूनिट सेल यहाँ पे बना सकते हैं, A इज इक्वल टू B, बट ये एंगल जो है इज 90 डिग्री। नो,
एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कितनी पॉसिबिलिटीज बन गई? 3। अभी एक और बन सकती है। तो दिस इज व्हाट आई मीन, जो प्राइमरी यूनिट सेल्स है हमारी, जिनको हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि प्राइमरी सॉरी एंड सेंटर है, जो हमारी प्राइमरी यूनिट सेल्स हैं, अगर हम उनके डायमेंशंस चेंज करेंगे ए बी सी एंड एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा, तो लोगों ने देखा है देयर आर ओनली हाउ मेनी पॉसिबल? देयर आर 7 यूनिट सेल्स पॉसिबल। उन्हीं 7 types of primitive unit cells which are possible by what? By the variation of edge lengths and angles. By the variation of edge lengths and angles, these are called as 7 crystal systems. याद रखिए, 7 crystal systems actually nothing. These are the types of primitive unit cells which are possible by the different variations of edge lengths and angles. तो मैंने कहाँ से समझा आपको? 2D से, क्योंकि 3D पे समझाना इट्स नॉट पॉसिबल हियर, या उन बोर्ड पे भी ये पॉसिबल नहीं है। सो बेस्ट वे इज टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम 2 डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन सेम अप्लाइज टू द 3 डायमेंशनल फिगर। गुड। तो ये 7 सिस्टम्स जो है, यू हैव टू मेमोराइज देम, देयर इज नो अदर ऑप्शन। आपको इनको रट के लेना है, पढ़ना है। किसी भी एग्जाम में, आप देख कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी वो आपसे कोई भी इनमें से एक क्रिस्टल सिस्टम पूछेंगे और इसके डायमेंशंस बताएंगे। तो मैंने एक छोटा सा एक निमोनिक्स, जिसको हम तुका कहते हैं, बना लिया आपके लिए, जहाँ से आप उसको याद रख सकते हैं। तो निमोनिक्स क्या है? यू रिमेंबर दिस CTOR, कटोर, CTOR कटोर, देन HMT, कटोर HMT, CTOR कटोर HMT, कटोर HMT आप याद रखेंगे तो उसी निमोनिक से आप 7 क्रिस्टल सिस्टम्स भी याद रखेंगे। इट विल फॉलो इन अ ग्रेजुअल वे, जहाँ से आपको ये याद रखना कोई मुश्किल बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक C फॉर क्यूबिक। क्यूबिक में जो होता है, हर एक एज लेंथ एक दूसरे के बराबर होते हैं। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स को मैंने यहाँ पे A, B और G लिखा है। इट्स एक्चुअली अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि अल्फा बीटा जो है, these are Greek letters, these are not present in our laptops or smartphones, so मैंने अल्फा की जगह A यहाँ पे लिखा है, बीटा की जगह B लिखा है, गामा की जगह G लिखा है। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, क्यूबिक में A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये याद रखना सबसे आसान है, इसलिए हमने वहीं से स्टार्ट किया। T फॉर टेट्रागोनल, T फॉर टेट्रागोनल। आप देखेंगे A इज इक्वल टू B, नाउ B इज नॉट इक्वल टू C। यानी यहाँ पे आप देखेंगे क्यूबिक में क्या होता है, इक्वलिटी इक्वलिटी, लेकिन यहाँ पे अब इक्वलिटी आ गई और उसके बाद पहली इनइक्वलिटी आ गई। यानी पहली इक्वलिटी जो है वहीं पे रह गई, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा जो है B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल बिल्कुल वही जो कहाँ पे है, क्यूबिक में। सो सिंपल। अब आ जाइए ऑर्थोरॉम्बिक पे। तो अभी पहले 2 इक्वलिटीज थी, फिर एक इक्वलिटी, अब वो भी खत्म हो जाएगी ना। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, लेकिन एंगल वही रहेंगे। आई होप दिस विल बी सिंपल फॉर यू टू रिमेंबर। पहले आपको इन एज लेंथ्स की इक्वालिटी हटानी है। पहले में 2 इक्वालिटी है, दूसरे में 1 इक्वालिटी है और तीसरे में कोई इक्वालिटी नहीं है। तो उसके बाद आ जाएंगे हम R फॉर रोम्बिक। रोम्बिक का दूसरा नाम याद रखिए, इट्स ट्राइगोनल, सॉरी ट्राइगोनल, TRIGONAL, ट्राइगोनल। रोम्बिक का दूसरा नाम आप साथ ही लिखेंगे, ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल में आप क्या याद रखेंगे? देखिए भाई, इक्वालिटी तो सारी खत्म हो गई, यहाँ तक इक्वालिटी सारी खत्म हो गई ऑर्थोरोम्बिक तक। फिर जब हम रोम्बिक स्टार्ट करते हैं, हम फिर आ जाते हैं वापस यहाँ पे इक्वालिटीज पे, यानी जहाँ पे दोनों इक्वालिटीज बराबर है। पहले दोनों इक्वालिटी है, एक इक्वालिटी खत्म हो गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे दोनों इक्वालिटीज खत्म हो गई। तो जब हम तीसरा चौथा लिखेंगे, वहाँ पे हम फिर इक्वालिटीज पे आ जाएंगे, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, रिपीट करेंगे साइकिल, वो रिपीट द साइकिल अगेन। लेकिन यहाँ पे अब एंगल्स की बात आएगी। इसमें जो है रोम्बोहाइड्रल में अल्फा इज नॉट, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती से क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे गलती से लिखा है नॉन इक्वल टू, दिस नॉट नॉन इक्वल टू, दिस इक्वल टू। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन ये तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं है, ये बात याद रखनी है।
alpha is equal to beta and beta is equal to gamma, but none of these angles is equal to 90. अब आप मुझे खुद बता सकते हैं हेक्सागोनल पे क्या लगेगा। हेक्सागोनल पे अब दो इक्वालिटीज आ गई है, अब इनमें से एक इक्वालिटी खत्म हो जाएगी, जाहिर सी बात है, तो वो हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। और हेक्सागोनल के एंगल जो है वो सबसे आसान याद रखना है। हेक्सागोनल के एंगल्स, आई विल मेक एन हेक्सागन हियर। व्हाट इज दिस एंगल? व्हाट इज दिस एंगल? दिस आर 120। अब इस वाले प्लेन पे एक लाइन होगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू इट। यहाँ से ये एंगल क्या होगा? 90। ये दो किस्म के एंगल्स होते हैं हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल में एंगल्स की तरतीब जो है वो बदल जाती है, इसलिए मैंने बोला कि एंगल्स हेक्सागोनल में लेकिन याद रखना बहुत आसान है। तो आप क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गामा इज इक्वल टू 120। गामा इज इक्वल टू 120। तो आ जाइए फिर मानो क्लिनिक पे। एक इनइक्वालिटी खत्म हो गई, अब बताइए क्या होगा? अब तो दोनों इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएगी। वेरी गुड। और एंगल्स आप याद रखेंगे वही किसके? हेक्सागोनल के। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90। Gamma is not equal to 90. And then last class of crystal systems is trigonal. Trigonal सबसे simple, exactly opposite of cubic. यहाँ पे a is equal to b is equal to c, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90. बिल्कुल opposite कीजिए। Alpha is not, a is not equal to b, b is not equal to c. Alpha is not equal to beta, beta is not equal to gamma, and gamma, all these angles are not equal to 90. So I hope you remember this mnemonics, क्योंकि ये आपको मैंने बोला, जैसे बोला, you have to remember this at any cost. इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं है, सिर्फ आपको रिमेंबर याद रखना है। याद रखने के लिए द सबसे सिंपलेस्ट mnemonics ही है कटोर, HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, रोम्बिक, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक एंड रोम्बिक, जिसका दूसरा नाम ट्राइगोनल है, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइकोनिक। ट्राइकोनिक एंड क्यूबिक एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से वो इक्वालिटीज का जो मैंने न्यूमेरिक्स बोला है, पहले दो इक्वालिटी, फिर एक इक्वालिटी, फिर कोई इक्वालिटी नहीं, फिर लाते हैं वापस साइकिल, दो इक्वालिटी, एक इक्वालिटी, न कोई इक्वालिटी नहीं है। होप यू अंडरस्टैंड इट। कोई भी कंफ्यूजन होगा प्लीज ग्रुप में मेंशन कीजिए, तो वी विल एड्रेस दैट इन द ग्रुप एंड वी विल डिस्कस। कोई कंफ्यूजन एक स्टूडेंट को, इफ सम स्टूडेंट्स हैविंग some confusion when he posts a question with relevance to that confusion, बहुत सारे other students ऐसे होते हैं जिनसे उनको और फायदा हो जाता है। So better to revert WhatsApp for any further help. Thank you.